Hello and very good morning, students of class 10th E. I hope you all are well. My dear students, yesterday I have just finished the topic unguided media, where I have to discuss satellite communication. So in that way, we have to covered all the types of data communication media. I have covered guided media as well as unguided media, and we have to also discuss the subpart. Like in guided media, we have to discuss twisted pair cable, optical fiber cable, and coaxial cable. In the similar fashion, in unguided media we have to cover following medium, like radio waves, like satellite microwaves or terrestrial microwaves. So this is how we have to complete or wind up these things. Now, my dear students, there are two. I think I just before this, starting the new topic, I just want to tell you one thing. That is the chapter that I am going to tell you is computer networking. It is a big chapter and it contains around 10 to 15 marks. It contains around 15 marks. तो अगर इस चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको आपके 15 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाते हैं, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है ना, बहुत इजी टॉपिक है। 15 मार्क्स आपके सारे कवर हो जाते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है वो, और जितना मैं अभी जो दो टॉपिक बचे हुए हैं वो पढ़ाऊंगा तो आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ओके, इस चैप्टर में मेनली दो टॉपिक बचे हुए हैं। पहला टॉपिक बचा हुआ है टोपोलॉजी, सेकंड टॉपिक बचा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क। ये दो टॉपिक बचे हुए, पहला टोपोलॉजी, दूसरा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये दोनों टॉपिक जो है ये इस चैप्टर की मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से दैट मार्क्स। सो ये चैप्टर जो मैंने अब तक पढ़ाया अभी तक, आप गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, इसके अलावा जैसे मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताए थे, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी वर्ड्स में मैंने बताई है, बहुत इजी वे में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो आई प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी इजी मैनर, तो यू डोंट वरी फॉर एनीथिंग। आपको जितना करना है कि जो चीज बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाना है, जो नहीं समझ में आ रहा मुझसे दोबारा पूछना है। मेरा अपना व्हाट्सएप, हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, बट you need to learn, you need to understand each and everything. But this generation is, this era is all about computers, and you have to be very aware about this thing. I told you many times and I'm again repeating myself. Okay, you have to clear each and everything in the class. I have also managed the doubt class, and if it is required I will take extra class in computer as well, no problem in this. But my suggestion is you have to clear all your doubts. Okay, I want that you will, all of you get at least 100 out of 95 in computers. This is my strategy for you all. Okay, so now these are the two topics left, that is topology and second is types of computer network. पहले क्या पढ़ना चाहोगे? टोपोलॉजी की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बताइए। दोनों इजी टॉपिक हैं बच्चों, पहले क्या पढ़ना चाहेंगे? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टोपोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, I have already explained you any topology in class 9, and I think you all of you familiar about this topology, right? टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं ना बच्चों आप लोग? यस सर। वही सेम चीज है, क्लास 9 के नोट्स भी इसमें आप रेफर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं नोट्स आपको दूंगा इस क्लास में भी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो देखते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। तो बच्चों, व्हाट इज टोपोलॉजी? एक डॉक शेयर करता हूं मैं आपसे। ओके, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू डॉक। Beta, can you see it? Can you see the doc? Yes, sir. Okay. So let's see what is topology. A topology defines the structure of the network of how all the computers are interconnected with each other. बस यही इसकी definition है। Topology defines the structure of network and how the all components of computer are connected with each other. Actually, I'll just write this definition in very easy manner, so you can easily understand that. Shall I remove all this thing? Yes, I remove this thing. So computer topology, I just say that what is topology? If anyone asks what is topology, what is topology? What is topology? So you will easily answer that. You will easily answer that. Topology. You can answer that. Topology
is a structure of computer network. So it will tell how computers are connected with each other. बेटा टोपोलॉजी एक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क का जो बताता है कि कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं. ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं. द टोपोलॉजी इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सो इट विल टेल हाउ कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर. एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड है, कैसे डेटा शेयर करता है, कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ये बताता है हमें टोपोलॉजी. क्या बताता है? टोपोलॉजी. समझ में आई बात बच्चों? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. So there are various types of topologies. There are various types of topologies. The first is the bus topology. Bus topology. First is the bus topology. Second is the star topology. Third is a you can say that ring topology. Fourth is you can say tree topology. Fifth is mesh topology. Sixth is hybrid. Hybrid topo. According to their physical structure, there are 6 ways we have to connect computers. These the way of connecting computers called topology. So there are 6 types of topology: bus topology, star topology, ring topology, tree topology, mesh topology, and hybrid topology. I will teach each and everything, and once you have to see this, you will easily understand which kind of topology it is. Okay, my dear student, can you see the doc? Okay, you can see there are total 6 types of topology: bus, ring, tree, star, mesh, or hybrid. There are total 6 types of topology. So first thing come first. Look, can you see the figure, my dear students? Yes, sir. This is a bus topology. You can see there is one single wired black wire. You can see this is called backbone cable. This is called backbone cable, and all the rest of the computers are connected with this main cable. This is called backbone cable. So this type of topology is called bus topology, where all the computers or all the nodes are connected with a single cable, backbone cable. Okay, have you got the point? Yes, sir. Okay, so I just say one thing, that a bus topology is defined in a such a way that all the stations are connected through a single cable known as backbone cable. ये बड़ा backbone cable है जिससे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से connected हैं. Have you got the point? ये केबल दिख रही है आपको? एरो दिख रहा है ना, ये मेरा कर्सर ये दिखा रहा हूँ, ये बैकबोन केबल दिख रही है, इससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. दिस इज कॉल्ड बैकबोन केबल. ओके, इसके अलावा क्या है? ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू अ बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल. बेटा ये तो या तो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या किसी ड्रॉप केबल के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं. ये ड्रॉप केबल क्या होती है आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है. तीसरी चीज क्या है?
when a node wants to send a message over the network, it puts message over the network. All the stations available in the network will receive the message where it has been addressed not. Okay, देखो बच्चों क्या होता है बैकबोन केबल में, मैं हटा दूं ये पूरा सारे नाम? Yes, sir. Okay, look what's happened. I'm just trying to explain with a better figure. Suppose ये कोई केबल है, so you can see my dear students, as you can see, this is a cable where all the nodes means computer. बेटा नेटवर्किंग की लैंग्वेज में सारे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? नोड्स. ओके, so where all the nodes are connected with each other by this cable called backbone cable. क्या बोलते हैं इसको? बैकबोन केबल. बताइए, समझ में आई बात? All the computers are connected with this backbone cable, and you know this A, B, C, D, all these are computers which is connected. You know this is a wire. Okay, these are the wires which is connected with this backbone cable. So अगर एक डेटा, मान लीजिए C ने कोई डेटा भेजा, एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए C ने कोई डेटा भेजा यहां से, सी ने एक डेटा, मतलब बी ने कोई डेटा भेजा बैकबोन केबल को, ठीक है? तो ये सारा डेटा यहाँ पे ए पे भी पहुंच जाएगा, बी पे, सी पे भी पहुंच जाएगा और डी पे भी पहुंच जाएगा. यानी इसमें अगर एक किसी कंप्यूटर ने कोई भी मैसेज सेंड किया तो वो मैसेज सभी तक रिसीव हो जाएगा. समझ आई बात? जैसे अगर हम लोग व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप पे अगर हम कोई भी मैसेज भेजते हैं तो सारे मैसेज सभी को रिसीव हो जाते हैं ग्रुप में. बताइए. Yes, sir. वही सेम चीज है. अगर मान लीजिए सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है इस बैकबोन केबल से, तो सारा डेटा एक दूसरे से शेयर्ड हो जाता है. बताइए, समझ में आई बात? So this is what about you can say that the backbone cable. Okay, but the concept इसमें कुछ ज्यादा एडवांस दिया गया है. कुछ इसके एडवांटेजेस देख लीजिए. क्या है एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी? क्या है? लो कॉस्ट केबल. लो कॉस्ट केबल, इसका सबसे बड़ा क्या एडवांटेज होता है? लो कॉस्ट केबल. बच्चों, इसमें जो भी तार होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है. ओके, द कॉस्ट ऑफ द केबल इज नॉट टू हाई. That means it is easily affordable. Second is moderate data speed. That means, my dear students, the rate of data transmission is not too fast, not too slow. 10 Mbps, 10 megabits per second. 10 Mbps की स्पीड ठीक ठाक स्पीड होती है. ओके, so the data transmission rate is quite good. Okay, familiar technology. Okay, you know that by the bus topologies is familiar to install and troubleshooting technique are well. My dear student, इसको इंस्टॉल करना भी इजी होता है. आप भी बना सकते हैं बस टोपोलॉजी का एक नेटवर्क. इसको बनाना भी आसान होता है. मान लो कोई खराबी आ गई तो उसको सही करना भी आसान होता है. यानी रिपेयरिंग भी इजी है और उसको मेंटेन करना भी इजी है, इसको इंस्टॉल करना भी इजी है. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बच्चों, कोई डाउट? बस टोपोलॉजी, हाँ, No, sir. बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि एक बैकबोन केबल के थ्रू. तो और जो भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती, मान लीजिए कोई सिस्टम खराब हो गया तो उसको डिटेक्ट करना इजी होता है. ओके, बहुत जल्दी पता चल जाता है कौन सी वायर खराब हो गई है, कौन सा कंप्यूटर खराब हो गया है. ओके, और लिमिटेड फेलियर, और इसमें इसको कंप्यूटर खराब होने, फेलियर होने का भी नेटवर्क के चांसेस कम होते हैं.
ओके, नेटवर्क फेलियर के भी चांसेस कम है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है एक्सटेंसिव केबलिंग। एक्सटेंसिव केबलिंग का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा केबल की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क केबल पर डिपेंडेंट है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ केबल, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ केबल। तो बड़ा ही मेसी ऐसा हो जाता है। आजकल ऑफिस में इसका इस्तेमाल कम होता है। पहले जमाने में अगर ऑफिस वगैरह जाइए तो बिल्कुल तार की तारें बिछी होती थी। यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वायर्स, you can say the wire net of wires you can find, okay, in the offices, but now this technology is not used right now, but आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड है डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। अब सबसे बड़ी क्या होती है, मान लो अगर कोई वायर खराब, मान लो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक भी सिस्टम खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इफ वन सिस्टम इज वन नोड इज डैमेज, इंटायर सिस्टम विल बी डैमेज्ड। ये तो गलत बात है ना। मान लो अगर ये कंप्यूटर है, एक सेकेंड, मान लो अगर ये, मान लीजिए अगर एक बी वाला कंप्यूटर खराब हो जाए तो क्या पूरा नेटवर्क बैठ जाना चाहिए, खराब हो जाना चाहिए? अगर ये कंप्यूटर हमारे खराब हो गया है, ये वाला बी वाला, तो क्या सारे ए सी और डी को भी खराब हो जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए? बताइए। पर क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी में ये होता है, अगर ये कंप्यूटर खराब तो सारे कंप्यूटर खराब। तो माय डियर स्टूडेंट, ये होती है बस टोपोलॉजी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। एज यू कैन सी द फिगर which is in the form of ring. You can see that this is the ring where all the computers are connected in the form of rings. All the nodes are connected in the form of rings. This is called ring topology. I can make a figure as well. Suppose there are 4 computers. My dear students, suppose there are 4 computers, 4 nodes. This is A, this is B, this is C, and this is D computer. There are 4 computers which is arranged in the ring format. So this is called ring topology. This is called ring topology. Any doubt? You can see that, my dear student, computer A or node A is connected with A, B and D directly. Similarly, B is connected with A and C, and C is connected with B and D, and in the similar and the last D is connected with A and C. You can see that all node is connected with their adjacent node. So this and they form a complete circle, form a complete ring. This is why it is called ring topology. Any doubt? No, sir. देखिए तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? A ring topology is like a bus topology but with a connected end. देखिए इसमें क्या होता है, ये भी बस टोपोलॉजी की तरीके ही होती है, बस इसमें ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सारे कंप्यूटर एंड टू एंड जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी का लीनियर होती है, सीधी होती है, मगर रिंग टोपोलॉजी एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़ी होती है। ओके, सेकंड पॉइंट है द नोड्स दैट आर रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल बी रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। कहने का मतलब ये बच्चों, मान लीजिए कोई मैसेज है, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सपोज कोई मैसेज है, ये ए ने सेंड किया, कोई मैसेज है, मान लीजिए हेलो, ये ए ने सेंड किया, ओके, कोई मैसेज है ए ने सेंड किया, मुझे इसको सी तक पहुंचाना है, तो डायरेक्टली सी तक नहीं पहुंच सकता है। पहले क्या करेगा, ये मैसेज ए से बी जाएगा या ए से सी जाएगा। ये डायरेक्शन अपने आप होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, यानी एक जगह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर, इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है। डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। ओके, एक चेन में फॉर्म होता है डेटा, समझ आई बात? यानी एक सीक्वेंस, उस सीक्वेंस में डेटा ट्रांसमिट होता है, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, इस तरीके से डेटा
सर्कुलेट होता है। कोई डाउट? No, sir. इजी है। द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन दैट इज यूनिडायरेक्शनल। देखो डेटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, एक समय में एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है। द डेटा कैन बी फ्लो in a single direction, that whether it is unidirectional or bidirectional. Okay, that is why it is called you can say it is a unidirectional data transformation or unidirectional data you can say that data you can say transmit. Have you got the point? Student, कोई doubt? No, Yes, sir. sir. Got the point. हाँ Sir. बताइए। No, sir. Okay, so data transmit, okay, the data flow in single loop continuously known as end loop, endless loop. बेटा इसमें डेटा एंडलेसली ट्रांसमिट होता रहता है, इसलिए कभी लूप खत्म नहीं होता है, हमेशा डेटा ट्रांसमिट होता रहता है। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज नो स्टार्टिंग एंड नो एंड नोड। बेटा हम इनमें से किसी को भी स्टार्टिंग नोड और एंड नोड नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते ए वाला स्टार्टिंग नोड है और डी वाला एंड नोड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, जहां से डेटा ट्रांसमिट होता है वो सभी कंप्यूटर्स में एक साथ ट्रांसमिट होता है, वन बाय वन करके। ओके, तो कहने का मतलब ये इसमें ना कोई स्टार्टिंग नोड होता है ना कोई एंड नोड होता है। समझ में आई बात? हम किसी को भी स्टार्टिंग, अच्छा हम आपसे कह दें अगर अपने ग्रुप की बात करें तो हम किसको कह सकते हैं, कौन इसमें स्टार्टिंग स्टूडेंट है कौन लास्ट स्टूडेंट है, बताइए। तो कह सकते हो ग्रुप में देखो सारे स्टूडेंट एक ही लेवल में है ना, बताइए। Yes, sir. कोई ना पहला बच्चा है ना कोई लास्ट बच्चा है ना कोई बीच का बच्चा है। तो उसी तरीके से रिंग टोपोलॉजी में सारे नोड सारे कंप्यूटर्स एक लेवल पे होते हैं, ना कोई स्टार्टिंग को कंप्यूटर होता है ना कोई एंड कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए बाकी इसमें टोकन पासिंग होती है वो बाद में बताऊंगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है बस वो बता रहा हूँ। ओके, Yes, sir. एडवांटेज क्या है? नेटवर्क मैनेजमेंट, क्वालिटी डिवाइस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट बिगिनिंग फ्रॉम द नेटवर्क। ओके, जो कंप्यूटर खराब होता है उसको इजीली रिमूव कर दिया जाता है। Many hardware and software tools are tools for network operation and monitoring available. हम बेटा इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आते हैं जिससे पता चल सकता है कि कौन सा कह सकते कंप्यूटर खराब हुआ है। इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इन एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल। देखो इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है मेनली, तो जो कि बहुत सस्ती होती है और बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद रिलायबिलिटी की बात करें तो बहुत ही रिलायबल नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब नहीं होता है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज की बात क्या है? इसके डिसएडवांटेज की बात यह है कि सबसे बड़ा क्या है कि द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन लीड्स टू द फेलियर ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क। अगर एक भी कंप्यूटर खराब तो सारा नेटवर्क खराब। इसके अलावा डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, कभी कभी क्या होता है बच्चों, अगर कभी कभी की बात यह है कि इसमें ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट हो जाती है। इन सम केसेस ट्रबल शूटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, इन सम केसेस। और इसके अलावा एडिंग द न्यू डिवाइस वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। अगर मान लीजिए कोई मतलब 4 कंप्यूटर है, 4 से अगर 5वां कंप्यूटर अगर एक नया कंप्यूटर ऐड करेंगे तो उससे उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, यानी कि नया कंप्यूटर ऐड करने पर, नया डिवाइस या नया नोड ऐड करने पर उस नेटवर्क की स्पीड डाउन हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ कि इसका डिसएडवांटेज है कि कोई नया कंप्यूटर ऐड करने पे उसकी स्पीड डाउन हो जाती है। इसके अलावा डिले communication is directly proportional to the number of nodes. Adding new node device increase the communication delay. वही बात है, नया कंप्यूटर ऐड करने पे, नया नोड ऐड करने पे कम्युनिकेशन डिले होता है। तो बच्चों ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात बच्चों। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, बाकी के बचे हुए 4 टोपोलॉजीज वो मैं कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब टाइम ओवर हो गया है। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, कोई डाउट? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम द टॉपिक दैट आई हैव कवर्ड टिल नाउ? बताइए। बाकी बच्चों मैं आपको नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा, यू जस्ट वॉच द वीडियो एंड आई विल गिव यू द रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। Thank you, sir.